It is today second day, second video of the lesson. If I were you from Beehive book, English book Beehive of class 9. And in first video, earlier passage, we came to read that how Gerard was busy in packing his things to go somewhere, and how he was talking on telephone and suggested, informed to call him soon to someone else. Meanwhile, what happens? An unknown person who is introduced हो जाने दो. ये किसके मिक से आवाज आ रही है जी? हम बंद कर देंगे. किसकी आवाज आ रही है ये? तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा है, मना करो तो. So, intruder sit down there. So intruder permitted to sit Gerard in comfortable position and no funny business, motions to a chair and sits himself on the divan by the back. Now then we shall have a nice talk, little talk about yourself. Intruder said that sit here, afforded place to sit to the Gerard, and further said that Mr. Gerard, don't be extra in motion. I am cautious. And we are going a little talk between both of us. And whatever I would ask, reply sincerely. Gerard, at last a sympathetic audience. I shall tell you the story of my life, how as a child I was stolen by the gypsies, and why at the age of 32 I find myself in my lonely excess causes house. Gerard was trying to avoid that intruder, so said that Mr. Intruder, Gerard would reply for each and everything, and further he would make introduced to the intruder with the whole life story, how he was stolen by the gypsies and how, being elder, he was found in the cottage. Intruder, keep it to yourself. Intruder said, keep it to yourself means there is no need to listen to me all this. Intruder कहा कि हमें इसमें इंटरेस्ट नहीं है, तुम अपना समझो. And just answer my questions. You live here alone, where do you? And intruder asked whether Gerard was living there all alone. Gerard, I'm sorry, I thought you were telling me, not asking me. जेराड का कह रहे सॉरी यार, मैं सोचा कि तुम मुझे बता रहे हो कि तुम अकेले रहते हो, अब तो तुम मुझे सवाल पूछ रहे हो. ठीक है. Not asking me a question of inflection, your voice is unfamiliar. Gerard said that your voice is something unique, strange. You are not telling about yourself, asking about yourself. पहले अपने बारे में बताओ, तब तो मैं तुम्हें बताऊं. Intruder with an emphasis, जोर से. Do you live here alone? Intruder कहता है जो अजनबी है कि क्या तुम यहाँ अकेले रहते हो? Gerard, and if I don't answer, Gerard कहता है कि यदि मैं जवाब न दूं, if I would not reply. Intruder, you have got enough sense not to want to get hurt. On asking that what would do intruder to the Gerard, if Gerard would not reply him, then intruder replies that he would hurt. And according to intruder, Gerard has common sense to understand the result of not responding to him as a being hurt. इंट्रूडर कहा कि तुम्हें समझ में अच्छी तरह से आ रहा है, खोपड़ी इतनी तो है कि समझ सकते हो कि मेरा जवाब नहीं दोगे तो ठोक दिए जाओगे, चोटिल हो जाओगे, मारे जाओगे. इतना सेंस है. तो अब तुम पे डिपेंड करता है, तुम जवाब दो चाहे मत दो, जो होगा देखा जाएगा. Gerard, I think good sense is shown more in the ability to avoid pain than in the mere desire to do so. What do you think, Mr. R? जेराड कह रहा है कि आई थिंक, मैं सोचता हूँ, गुड सेंस, समझदारी, इज शोन, दिखाई जाती है ज्यादा, इन द एबिलिटी टू अवॉइड पेन. जेराड कह रहा है कि पेन, दर्द यानी चोट को अवॉइड करना शायद ज्यादा बेहतर और श्रेयस्कर होता है अपेक्षाकृत चोट हासिल करने के. यानी indirectly Gerard is saying that he would reply clearly to the intruder. What do you think, Mr. R? आगे वो जेराड पूछ रहा है मिस्टर R means intruder. What do you want to know? And क्या सोचते हो? Intruder, never mind my name.
इंट्रूडर कह रहा है वो अजनबी कि मेरे नाम के बारे में मत सोचो, फॉरगेट माय नेम, व्हाट एवर आई एम आस्किंग रिप्लाई। इंट्रूडर कहा कि जो मैं पूछ रहा हूँ वो बताओ, अपना चक्कर छोड़ो। आई लाइक योर्स बेटर मिस्टर जेरार्ड, व्हाट आर योर क्रिश्चियन नेम। इंट्रूडर कह रहा है कि मेरा नाम और मेरा जवाब छोड़ो, मैं तुम्हारे नाम में ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ, इसलिए अपना नाम अपना पता बताओ, तुम्हारा क्रिश्चियन नेम क्या है, व्हाट इज योर क्रिश्चियन नेम। जेरार्ड, विंसेंट चार्ल्स। जेरार्ड कहा कि मेरा नाम विंसेंट चार्ल्स है। इंट्रूडर, डू यू रन अ कार। इंट्रूडर कहा कि क्या तुम कार चलाते हो, वेदर यू ड्राइव अ कार। जेरार्ड, नहीं। जेरार्ड रिप्लाइड इन नेगेटिव। इंट्रूडर, दैट्स अ लाई। इंट्रूडर कहा कि यह झूठ है, यू आर स्पीकिंग अ लाई, यू आर नॉट डीलिंग विथ अ फूल। तुम एक मूर्ख से बात नहीं करो। मिस इंट्रूडर वाज प्रेजेंटिंग हिमसेल्फ एज अ वाइज मैन, नॉट एन फूल मैन। So, cautioning to Gerard to reply sincerely and genuinely, ईमानदारी से सही से जवाब दो। इंट्रूडर जेरार्ड से कह रहा है आई एम एज स्मार्ट एज यू एंड स्मार्टर। आगे कह रहा है कि आई एम, मैं हूँ, एज स्मार्ट एज, मैं उतना ही स्मार्ट हूँ जितना कि यू, तुम, एंड स्मार्टर, और यहाँ तक कि तुम्हारे इतना स्मार्ट तो भी हूँ, बट मोर देन स्मार्ट टू यू, तुमसे थोड़ा सा अधिक ही स्मार्ट हूँ, इसलिए अपने को स्मार्ट ज्यादा मत समझो, जो पूछा हूँ सही सही बताओ। एंड आई नो यू रन अ कार, बेटर बी केयरफुल वाइज गाय। और आगे इंट्रोडक्टर कहा कि मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम कार चलाते हो, इसलिए तुम्हारे लिए श्रेयस्कर और लाभकारी यही है कि तुम सही सही बताओ, और नहीं बताओगे तो अभी समझ में आ जाएगा। जेरार्ड, आर यू अमेरिकन और इज दैट मियरली अ क्लेवर इमिटेशन। जेरार्ड कह रहा है ये जो वर्ड GUI गाय है, यह गाय वर्ड फ्रेंड्स, जैसे हम लोग फ्रेंड दोस्त कहते हैं ना इंडिया में, वैसे अमेरिका में फ्रेंड्स को गाय कहा जाता है। सिंपल वर्ड है, अरे यार, उफ, अरे मर्दे, जो देहात में भी तुम लोग कहते हो ना, इन सब का एक वर्ड है गाय, जो कि अमेरिका में बोला जाता है। सो जेरार्ड इज इंक्वायरिंग ऑफ विद द इंट्रूडर दैट ही बिलोंग्ड टू अमेरिका या और ओनली इमिटेटिंग। इमिटेटिंग में नकल करना, अनुकरण करना, आपके बोलने के तौर तरीके को देख करके उसी को फॉलो करूं, नकल करूं मैं, तो वो इमिटेशन कहलाता है। तो जब वो गाय वर्ड बोला तो जेरार्ड कह रहा है कि अरे तुम गाय शब्द यूज कर रहे हो, जरा सही सही बताओ कि तुम अमेरिका से ही बिलोंग करते हो या फिर अमेरिका की नकल ही कर रहे हो। इंट्रूडर, लिसन। इंट्रूडर कहा सुनो, बकवास मत करो। दिस गन इज नॉट टॉय। कहा कि ये जो बंदूक मेरे हाथ में है ना, ये खिलौना नहीं है, अभी समझ में आ जाएगा। आई कैन हर्ट यू विदाउट किलिंग यू। कह रहा है कि आगे मैं तुम्हें मारूंगा भी नहीं, और तुम्हें इसी गोली मारूंगा कि चोट भी एकदम बेहाल हो जाओगे और मरोगे भी नहीं। एंड स्टिल गेट माई आंसर्स, और फिर भी जब बेसुध हो जाओगे, बेहाल हो जाओगे गोली लगने से, तो विवश होकर मेरे सवालों के जवाब दोगे। इसलिए तुम अपने बारे में सोचो, चोटिल होने से ज्यादा पसंद करो कि जल्दी जल्दी सिंसियरली जवाब दो, वरना अभी ठोकूंगा ठिकाने लग जाओगे। जेरार्ड, ऑफ कोर्स, दैट इज प्रोबेबली, संभवतः, शायद। इफ यू पुट इट लाइक दैट आई विल बी ग्लैड टू असिस्ट यू। वो कह रहा है जेरार्ड, चूंकि बंदूक जो थी बगल में रखी हुई थी ना, हाथ में लिया था नॉर्मल, अभी एकदम ऐसा नहीं किया था, तो जेरार्ड कहा कि यदि तुम उसे उस तरह से रखोगे तो आई विल बी ग्लैड, तो मुझे आसानी होगी टू असिस्ट यू। असिस्ट यू का, असिस्ट का मतलब सहयोग करना होता है, टू हेल्प। तो जेरार्ड कहा कि अगर तुम बंदूक दूसरी साइड में रखे हो, जैसे इस समय उस तरह से रखोगे, तो मुझे तुम्हारा जवाब देने में आसानी होगी और मैं आसानी से तुम्हारा रिप्लाई कर लूंगा। आई डू पॉसेस अ कार। जेरार्ड कहा कि हाँ पॉसेस, आई डू पॉसेस का मतलब मेरे पास है, कार मीन्स कार, मेरे पास कार है। एंड इट्स इन द गैरेज राउंड द कॉर्नर, और दैट कार इज स्टैंडिंग जस्ट इन द कॉर्नर ऑफ द गैरेज। गैरेज राउंड का मतलब बगल में जो गैरेज है, उस गैरेज के कॉर्नर में दैट कार इज स्टैंडिंग, और दैट कार वाज स्टैंडिंग। इनटू दैट्स बेटर, बहुत बढ़िया। डू पीपुल ऑफन कम आउट हियर। आगे करें कि क्या लोग अक्सर यहाँ आया जाया करते हैं तुम्हारे पास। जेरार्ड, वेरी रेयरली। रेयरली मीन्स हार्डली, बड़ी मुश्किल से, कभी कदार। सरप्राइजिंगली, आश्चर्य से, फ्यू पीपुल टेक द ट्रबल टू विजिट मी। जेरार्ड का आश्चर्य से कि कुछ लोग मेरे यहाँ आने की जहमत उठाते हैं, परेशानी करते हैं। देयर इज द बेकर एंड द ग्रीन ग्रॉसर ऑफ कोर्स। कह रहा है कि बेकर है एक पाव भाजी बेचने वाला, और ग्रीन ग्रॉसर जो बनिया है जनरल स्टोर का,
वही सब कभी कदार आते हैं, वरना मुझ गरीब को कौन पूछता है। तुम ही स्मार्ट व्यक्ति हो मिस्टर इंट्रूडर, जो आके कुछ पूछे मेरा महत्व बढ़ाए, वरना मैं तो बेकार पड़ा हूँ। Course. And then there is the milkman, quite charming but no one so interesting as yourself. कहा कि और बचा खुचा जो कमी है वो मिल्कमैन ग्वाला पूरी करता है। ही द ग्वाला मिल्कमैन कम्स, द मिल्क डिस्ट्रीब्यूटर कम्स टू मी, बट ही इज नॉट सो स्मार्ट एज यू। जैसे कि तुम स्मार्ट और पावरफुल हो वैसा वो भी नहीं आता है, चला जाता है, कोई मतलब नहीं रखता। into the I happen to know, I happen, देखो happen to know, पता चला, जो आप लोग कहते हो ना बाद बाद में, यार हमें ये पता चला है, मुझे ये पता चल गया है, ये पता चला है, तो उसका होता है happen to know। happen to know भी कह सकते हो, I came to know भी कह सकते हो, मुझे पता चला। came to know जब मैं जाना या मुझे पता चला। happen to know अचानक पता चला। दो बात है, came to know जब मैं जाना, और happen to know का मतलब अचानक मुझे पता चला। ठीक, तो I happen to know means I came to know suddenly that you never see tradespeople. Tradespeople means व्यवसायी, businessman. Gerard, you seem to have taken a considerable amount of trouble. Considerable means पर्याप्त, यहाँ कंसिडर में विचार करना होता है, कंसिडरेबल विचारेबल, विचार करने के लिए कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ ट्रबल मीन्स जेरार्ड कह रहा है कि मुझे लग रहा है कि तुम्हें मेरे यहाँ आने में बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ी है, और आ गए हो तो बड़ा खतरा मोल लेना पड़ेगा। सिंस यू नो सो मच अबाउट मी, वुड नॉट यू से समथिंग अबाउट योरसेल्फ, यू हैव बीन सो मॉडेस्ट। वो कह रहा है कि चूंकि जेरार्ड कह रहा है कि देखो इंट्रोडर, तुम मेरे बारे में तो बहुत कुछ पता कर लिए हो, जान गए हो, और अभी भी पूछ रहे हो, लेकिन अपने बारे में नहीं बता रहे हो। दैट इज नॉट गुड। टेल मी अबाउट योर सेल्फ आल्सो। इंट्रूडर, आई कुड टेल यू प्लेंटी। प्लेंटी में होता है मैनी, प्रचुर, सफिशिएंट। इंट्रूडर कहा कि मैं भी तुम्हें बहुत कुछ बताऊंगा, घबराओ मत, टाइम आने दो। You think you are smart, but I am the top of the class around here. इंट्रूडर कह रहा है कि तो समझ रहे हो कि तुम ही चालाक हो, तुमसे ज्यादा चालाक मैं हूं, और मुझसे ज्यादा चालाक इस एरिया में कोई नहीं है, ज्यादा बकबक मत करो। I have got brains and I use them. इंट्रूडर कह रहा है कि मेरे पास खोपड़ी है, भगवान ने दिया है, और उस खोपड़ी का मैं यूज करता हूँ, अप्लाई करता हूँ। That's how I have got where I have. यही कारण है कि मैं जो चीज पाता हूँ मेरे पास है, वह चीज मैंने पाया अपने बलबूते, अपने हासिल से, तुम्हारी तरह बोकस नहीं हूँ। जेरार्ड, एंड वेयर प्रिसाइजली हैव यू गॉट, और जेरार्ड कह रहा है कि और पाए तुम कहाँ से। इट डिड नॉट रिक्वायर अ ग्रेट ब्रेन टू ब्रेक इनटू माय लिटिल कॉटेज। अब कह रहा है जेरार्ड कि तुम इस कॉटेज में घुसे, मेरी झोपड़ी में, मेरे घर में घुसे कहाँ से, क्योंकि ये हट है, झुग्गी है, तो इसमें घुसना कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें कौन सी उपलब्धि कर लिए कि तुम एंट्री कर गए, कहीं और एंट्री किए होते तो होता भी, यहाँ तो झोपड़ी है, कोई भी घुस जाएगा, तुम भी घुस गए, कौन बड़ी बात है। व्हाट इज द मैटर इन दिस। इंट्रूडर, when you know why I have broken into your little cottage, you will be surprised, and it would not be a pleasant surprise. Intruder is saying that when Gerard would come to know that why did the intruder enter into the cottage of the, or by into breaking into the cottage of the Gerard, then he would get surprised, and surely that surprise would not be pleasant or sufficient good for him. इंट्रूडर कहा कि ठीक है, तुम ये जानना चाहते हो कि तुम्हारी झोपड़ी में मैं कैसे घुसा, तो ठीक है, अभी जान जाओगे, लेकिन इससे पहले तुम ये जान लो कि जब तुम जानोगे कारण कि मैं क्यों घुसा, तो उस कारण को जानने के बाद तुम्हें सरप्राइज तो होगा, लेकिन वह सरप्राइज कोई मजेदार नहीं होगा जैसे दूसरों को होता है। तुम्हें धीरे का झटका जोर से लगेगा। यू विल गेट हर्ट फास्ट रिलेशन टू द स्लो हर्ट, लिटिल हर्ट। Gerard, with you figuring so largely in it, that is undesired, understandable. By the way, what particular line of crime do you embrace, or are not you a specialist? जेरार्ड कह रहा है कि तुम जरा अपने बारे में बताओ कि ये तुम पार्टिकुलर लाइन जो है क्राइम, अपराध की, ये एडाप्ट कर रखे हो, पहले से इसमें स्किल्ड हो, या अभी नई नई एंट्री किए हो इस लाइन में। जेरार्ड इज ट्राइंग टू नो द सीक्रेट ऑफ द intruder, but
He was also mindful, intelligent person. He was trying to avoid in telling about self. Embrace मीन्स होता है अपनाना, adopt. इंट्रूडर, माई स्पेशलिटी ज्वेल रॉबरी. इंट्रूडर वो जो आया है व्यक्ति, वो कह रहा है कि मेरी विशेषता यह है कि मैं ज्वेल रॉबरी कानों की लूटे और खसोट करता हूँ, यहाँ तो कुछ जरूरत है तब आया हूँ. योर कार विल डू मी अ ट्रीट. कह रहा है कि तुम्हारी कार इसमें मेरी हेल्प करेगी, अगर मैं ले लेता हूँ यह कार तो तुम्हें ठगने में और लूटने में आसानी रहेगी. इट्स सर्टेनली अ डैंडी बस, यूजफुल बस फॉर हिम. Gerard, I am afraid jewels are few and far between in the woods of Essex. जेरार्ड कह रहा है कि मुझे अफसोस है कि जो मेरे घर के जेवेल्स हैं वो बहुत कम हैं, और जो हैं भी वो विंड ऑफ एसेक्स, उधर घास फूस में जो पीछे बाग है, बगीचा है, उसमें पड़े हुए हैं, जाके ले लो. Intruder, so are the cops. I can retire here nicely for a little while. इंट्रूडर कह रहा है कि ठीक है, मैं यहाँ से हट के वहां भी खोज लेता हूँ, देखना हूँ फिर. जेरार्ड, यू मीन टू लिव विथ मी. जेरार्ड कह रहा है कि क्या इसका मतलब तुम मेरे साथ थोड़े समय रहोगे. अ ट्रिफल सडन इज नॉट इट. यह क्या थोड़े समय के लिए बहुत दुखद स्थिति नहीं है कि तुम मेरे साथ रहोगे. यू हैव नॉट बीन इनवाइटेड. तुम्हें मैंने इनवाइट नहीं किया है, तुम यहाँ जबरदस्ती आ गए हो. तुम यहाँ से फूटो, मेरी जान छोड़ो, मेरे घर में मत